Hello everyone. Welcome back to the third part of the video in which we are going to study about proteins. Proteins are the major component of the cell. It forms 10 to 15% of the cell content. If we'll talk about how the protein is being made inside the cell, so the building block of protein is known as amino acids. Let's see the structure of amino acid first. See, amino acid forms the building block of the protein. If we'll talk about the structure of amino acid, it has 4 groups attached to it. One is known as NH2 group. One group is NH2 group. The another group that is attached to the that side of the carbon, that is COOH, carboxylic group. One group is known as hydrogen group and one is R, that is known as variable group. If all the four side of the carbon is being connected with different kind of groups, then this carbon is known as alpha carbon. This carbon is known as alpha carbon. Moving towards the next part, that is structure of few amino acids. If we'll talk about the structures of few amino acids, the basic structure of the amino acid have one end it has NH2 group, in another end it has carboxylic group, one is hydrogen and one group is known as variable group, that is R. If we will place hydrogen here, then this type of amino acid is known as glycine. If in place of hydrogen, if we will change the group and make it NH2, here H, and here in place of this, if we will place CH3 group, then it will be La. And if we will place COOH, NH2, H, CH2, OH, if it will be serine. Simple trick to remember these three structure is G, A and S. It is gas. Glycine, alanine and serine. G for glycine, A for alanine, S for serine. In one structure we have hydrogen attached with it. In another structure we have methyl group attached with it. And in one structure we have CH2OH group attached to it. These are the three structures you need to remember in this chapter. If we'll talk about the classification of amino acid, amino acids are being classified into 3 groups basically: acidic amino acid, basic amino acid, alkaline amino acid, that is known as, and the third is neutral amino acid. Some are also known as alcoholic, alcohol ring like structure is there. Then that type of amino acid will also be there. See, there are 2 amino acids that are acidic in nature. Acidic amino acid, that is glutamic acid and aspartic acid. Histidine, arginine and lysine are known as alkaline or basic amino acids. Glycine, alanine, valine, leucine and isoleucine are known as neutral amino acids. Cysteine and methionine are known as sulfur containing amino acids, and these are the ring structure. Phenylalanine, tyrosine, tryptophan is a cyclic, heterocyclic ring structure. They are known as aromatic amino acids.
Basically there are of three types: acidic, alkaline or basic and neutral amino acid. But some amino acid have sulfur also attached to it, and they are cysteine and methionine. And some amino acid have aromatic ring, the cyclic, heterocyclic ring arranged with it. They are phenylalanine, tyrosine and tryptophan. So these, on the basis of the variable group, some amino acids are acidic, some are basic, some are neutral, some are sulfur containing and some are aromatic amino acids. If we talk about the essential and non-essential amino acid, what are essential amino acid? Essential amino acids. Those amino acids, the amino acid that are not synthesized in our body, हमारे बॉडी में नहीं बन रहे हैं. We have to take the supplements either from the food or from some other source. If we have to take it from outside, then that type of amino acids are known as essential amino acid. Amino acids that need to be taken from our diet are known as essential amino acid. And which are non-essential amino acid? Non-essential amino acids, the amino acid that are synthesized by our body, हमारे बॉडी में ही खुद सिंथेसाइज हो जाता है, उस तरीके के अमीनो एसिड को हम बोलेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. द अमीनो एसिड्स दैट आर synthesized by our body. So हमको बाहर से नहीं लेना पड़ता है, इसलिए उनका नाम है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. टोटल हमारे बॉडी में कितने अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है? 20 अमीनो एसिड्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत है. आउट ऑफ दैट सम आर एसेंशियल एंड सम आर नॉन एसेंशियल, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. अब एसेंशियल अमीनो एसिड को याद रखने के लिए एक ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं पीवीटी टिम हिल. 20 अमीनो एसिड में से ये 9 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो एसेंशियल हैं, और उसको याद रखने की ट्रिक है पीवीटी टिम हिल. पी से फिनाइलएलानिन, वी से वैलिन, टी से थ्रियोनिन. यहाँ पे टी से ट्रिप्टोफैन, आई से आइसोल्यूसिन, एम से मिथियोनिन, एच से एच आई, ये जो एच दिया हुआ है तो एच आई भी लिख सकते हैं स्मॉल आई हिल के लिए, बट मैंने एक ही आई लिखा हुआ था. तो इससे हिस्टिडीन, आई से आइसोल्यूसिन और एल से लाइसिन. बाकी के जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. एक आर्जिनिन है जो सेमी एसेंशियल में जाता है, एसेंशियल भी है और नॉन एसेंशियल, तो हम उसको बोलते हैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिखा है. सो इस टेक्निक से अगर आप याद रखोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. अमीनो एसिड का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम बोलते हैं ज्यूटर आयोनिक फॉर्म. ज्यूटर आयोनिक फॉर्म क्या है? जैसे कोई अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना है तो एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक साइड अमीनो ग्रुप है और एक आर वेरिएबल ग्रुप है जो चेंज होता रहता है. अब अलग अलग पीएच में, इन डिफरेंट पीएच, क्या है? इन डिफरेंट पीएच ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर आयोनाइजेबल नेचर. उनका जो नेचर है वो कैसा है? आयोनाइजेबल है. तो अलग अलग पीएच में वो अपने ग्रुप्स चेंज करता है. तो जो अमीनो एसिड, जैसे अगर अमीनो एसिड के दोनों साइड, ये NH2 ग्रुप है और ये COH ग्रुप है, अगर अमीनो एसिड ने अगर एक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और दूसरे साइड से एक्सेप्ट कर रहा है, एक साइड रिड्यूसिंग एंड है तो दूसरे साइड ऑक्सीडाइजिंग एंड है, तो उस तरीके के अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ज्यूटर आयोनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड. जैसे
अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये एक HCOO माइनस NH3 प्लस R वेरिएबल ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर अलग अलग pH में आइदर दे विल बी रिड्यूसिंग और दे विल बी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। तो दिस टाइप ऑफ स्टेट ऑफ अमीनो एसिड आर नोन एज ज़्यूटरआयोनिक कंडीशन और ज़्यूटरआयोनिक स्टेज ऑफ अमीनो एसिड। मूविंग टूवर्ड्स अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। अमीनो एसिड्स आर द यूनिट्स दैट मेक द प्रोटीन। जैसे कोई घर बना रहे हैं तो उसमें ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है टू मेक अ वॉल, तो वैसे ही यहाँ पे प्रोटीन बनाने के लिए द ब्रिक का काम कौन कर रहा है? अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किस बॉन्ड से कनेक्टेड है? पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। जैसे ये देखो अमीनो एसिड नंबर 1 2 3 4, तो इसके बीच में हमको क्या दिख रहा है? ये सब बॉन्ड दिख रहे हैं। तो ये एक साइड में अमीनो एसिड के कैसा स्ट्रक्चर है? ये देखो NH3 ग्रुप है और दूसरे साइड में COOH ग्रुप है। और वही अलग अलग pH में अलग अलग अमीनो एसिड अगर एक साथ से लिंक हो जाए बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड, देन दे विल मेक अ पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन सी चेन बनाएगी? पॉलीपेप्टाइड चेन। और वही पॉलीपेप्टाइड चेन slowly and gradually will form the protein. If one polypeptide chain will connect with the other, it will form different structure. देखो यहाँ पे ये अमीनो एसिड का सिंपल स्ट्रक्चर है, COOH ग्रुप अटैच है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, R वेरिएबल हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे देखो इसी तरीके से, और ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है क्या? पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से। तो एक अमीनो एसिड, एक मोनोमर अमीनो एसिड का एक है और दूसरा अमीनो एसिड, दोनों कनेक्टेड होते हैं किस बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से। अगर हम अलग अलग स्ट्रक्चर देखें उससे पहले लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन का क्या क्या फंक्शन है? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज इट इज यूज्ड टू मेक एंटीबॉडीज। हमारे बॉडी में जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर के होते हैं। सेकेंड, अमीनो एसिड क्या बना रहा है? मिलके प्रोटीन ही बना रहा है। तो प्रोटीन का क्या काम है? एक तो सबसे पहले एंटीबॉडीज़ बनाना। सेकेंड, इट हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। टिश्यू कहीं टूट गया है तो उसके रिपेयर में। थर्ड, इट एक्ट्स एज अ ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस का भी काम कर रहा है, दो टिश्यू को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन सा प्रोटीन? कोलाजन। सबसे ज़्यादा एनिमल प्रोटीन में मिलता है हमको कोलाजन प्रोटीन। देन फोर्थ, ग्लूट जो है GLUT4, वो क्या काम कर रहा है? मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करता है। क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन द मेम्ब्रेन इज फैसिलिटेटेड बाय GLUT प्रोटीन। देन और क्या काम कर रहा है? हॉर्मोन्स, इट एक्ट्स एज अ हॉर्मोन्स, it acts as an enzymes. So these are the few functions of protein that are important in our day-to-day life. If we talk about the most abundant protein in the world, it is collagen protein that is found in our body, and the most abundant protein in biosphere, it is Rubisco. Rubisco is ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. Rubisco प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है।
सबसे ज़्यादा प्रोटीन। एनिमल वर्ल्ड में ये कोलाजन और प्लांट वर्ल्ड में, और वी कैन से पूरे बायोस्फीयर में, एज प्लांट्स आर मोर इन नंबर, तो रिबिस्को जो प्रोटीन है, रिबिस्को आर यू से राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट BI से, कार्बोक्साइलेज कार्बन से, ऑक्सीजनेज O से, एंड दिस हेल्प इन द respiration also. If we'll talk about the structures of protein, there are 4 structures of proteins. First structure is known as primary structure. सिंपल, सीधे सीधे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उस तरीके के स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। सेकेंड इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैन बी हेलिकल इन शेप और इट कैन बी डिस्क लाइक, इन दिस वे, डिस्क जैसे कनेक्टेड है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, जो कैसा दिखता है, जैसे ऊन के गोले के जैसा, वुलन बॉल जैसा दिखता है, ये ही स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटरवाइंड हो जाएगा तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा। एंड फोर्थ इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड और प्रोटीन्स। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन का अगर हम प्रोटीन का देखें तो पॉलीपेप्टाइड चेन, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन अगर एक दूसरे में इंटरवाइंड हो जाए तो क्या बनाएगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, फिर दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस तरीके से लगी है, चौथी पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो ऐसे 3 से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ इंटरवाउंड होगी तो हम उसको बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेट अस सी द स्ट्रक्चर वन बाय वन विद द डायग्राम। See, these are the primary structure of protein. Primary structure of protein हमको क्या बताता है? It gives us an idea that how many and what amino acids are present to make protein. प्रोटीन बनाने में कितनी अमीनो एसिड लगे और कौन कौन से अमीनो एसिड, वो हमको किस स्ट्रक्चर से पता चलेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। सी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है, सो वो ऐसे ही कनेक्ट कर करके दे हैव मेड अ बीड लाइक स्ट्रक्चर, एंड ये एक पूरी की पूरी हम बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन है। होमो पॉलीपेप्टाइड भी हो सकती है, होमोपॉलीमर भी हो सकता है, एंड इट कैन बी हेट्रोपॉलीमर। यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर, एक साइड एन टर्मिनल है, दूसरे साइड सी। एन टर्मिनल मतलब अमाइड ग्रुप यहाँ पे अमीनो ग्रुप होगा, और सी टर्मिनल मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप उधर होगा। एंड देखो यहाँ से शुरू हुआ है, and this make the whole chain, and we can easily identify this is first amino acid, if then it can be second, third, fourth, ये सब के सब सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पे प्लेस है, ओनली वी आर एबल टू फाइंड इट आउट विद द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। किस स्ट्रक्चर से पता चलेगा हमको, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो acid. It will give us an idea which kind of amino acid and in which form they are being attached. Then the secondary structure. If you will see the secondary structure, देखोगे तो देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। If you will see the secondary structure, close look अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैसा है, देखो ये O, C and O ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच है, एंड NH ग्रुप के साथ यहाँ पे अटैच है। इस तरीके से वो लोग क्रॉस बना रहे हैं।
NH ग्रुप COH ग्रुप, बॉन्डिंग देखो NH ग्रुप COH ग्रुप, तो ऐसे एक शीट बन जाएगी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होगा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और दूसरा होगा बीटा प्लेटेड शीट, उस फॉर्म में होगा। यही अमीनो एसिड यहाँ पे देखो हेलिकल फॉर्म में अटैच्ड है, 1,4 लिंकेज दिखा रहा है, एंड यहाँ पे COOH एंड NH, COOH NH, इस फॉर्म में दो स्ट्रक्चर हैं, एक हेलिकल फॉर्म है और दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट। ये देखो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखें तो टिपिकल हेयर स्ट्रैंड, तो यहाँ पे हेयर का स्ट्रैंड देखो हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाता है, एग्जाम्पल इज केराटिन। स्ट्रॉन्ग लिंक डाई सल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पे है ना सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड भी अगर होगा तो डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाएगा, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है साथ साथ में। तो ऐसे हेयर के स्ट्रक्चर में केराटिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वैसे ही सिल्क प्रोटीन हम बोल सकते हैं, फाइब्रोइन, एंटी पैरेलल बीटा शीट। ये देखो यहाँ पे ये ऊपर एक तरफ ऊपर जा रही है तो दूसरी तरफ नीचे आ रही है, तीसरी ऊपर जा रही है तो चौथी नीचे आ रही है, पांचवी। तो इस तरीके से ग्लाइसिन और एलेनिन की साइड चेन से उसने सिल्क का प्रोटीन बनाया है। ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा दिखता है, बट हम ड्रॉ करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। तो दीज आर द हेलिकल स्ट्रक्चर and plated structure, beta plated structure are the two types of secondary protein. If we'll talk about the third type, tertiary amino acid, tertiary structure of the protein that are made up of amino acid. तो देखो यहाँ पे पिक्चर देखो, secondary structure दिख रहा है सबको, everyone is able to see the secondary structure of the amino acid, alpha helix and beta strand. ये alpha helix कैसी है, ये वाली, ये जो टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, These are all alpha helical structure. And plated sheet कैसा है, ये देखो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, and this will make the whole. These are helical along with plate. And जब वो मिक्स होगा एक दूसरे के साथ इंटरवाउंड करेगा तो ये वुल लाइक स्ट्रक्चर, एक वुल जैसा दिखता है, वुलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। When secondary structure interwinding होगी with each other, तो they will form a woolen ball, and this woolen ball will be the tertiary structure of protein. ऐसा बॉल जैसा दिखेगा। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज मायोग्लोबिन। मसल्स में हमको इस तरीके का प्रोटीन देखने के लिए मिलता है, जिसका हम नाम देते हैं मायोग्लोबिन। वो मायोग्लोबिन का टर्शरी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक देखो यहाँ पे हेलिकल भी दिख रहा है, साथ साथ में बीटा प्लेटेड शीट, यही एक दूसरे में इंटरवाइंड हो चुके हैं, एंड दिस फॉर्म्स द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। हमारे बॉडी में मोस्ट ऑफ द प्रोटीन टर्शरी फॉर्म में ही है, टर्शरी फॉर्म में मोस्ट ऑफ द प्रोटीन है। एंजाइम्स आर मोस्टली इन द टर्शरी फॉर्म, द व्हाट वी कैन से डाइजेस्टिव ज्यूसेस आर इन द टर्शरी फॉर्म। टर्शरी फॉर्म में ही बहुत सारे प्रोटीन हमको देखने मिलते हैं। एंड द फोर्थ फॉर्म ऑफ द प्रोटीन इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मतलब कैसा है, देखो यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर ये एक है, वैसे ही दूसरा, वैसे ही तीसरा, मतलब एक से ज़्यादा 1 2 3 पॉलीपेप्टाइड चेन connected together that forms the quaternary structure of the protein. देखो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये एक, ये दो, ये दोनों मिला के यहाँ पे देखो इस तरीके का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वैसे ही यहाँ पे देखो जैसे हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलिन, हीम ग्रुप इज अटैच विद इट। तो हीम ग्रुप कैसे अटैच है, देखो ये हीम ग्रुप है, ये जो रेड रेड दिख रहा है वो, और 4 पॉलीपेप्टाइड है, एक ये बीटा, ये वाली बीटा, ये अल्फा और ये वाली अल्फा।
ऐसे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जब एक साथ एक दूसरे के साथ में अटैच होगी तो दे विल फॉर्म द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे अगर हम देखें प्राइमरी, अगर समराइजेशन करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखो हमको क्या किस तरीके के अमीनो एसिड हमको मिल रहे हैं, किस तरीके के अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है वो पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट अमीनो एसिड इज लाइसिन, यहाँ पे दे सकते हैं फर्स्ट अमीनो एसिड इज लाइसिन, सेकेंड इज ऑल्सो लाइसिन, थर्ड इज हिस्टिडीन, फोर्थ इज आर्जिनिन, फिर से फिफ्थ हिस्टिडीन, सिक्स्थ इज थ्रियोनिन, सेवेंथ इज प्रोलिन, एट्थ इज वैलिन। तो इस तरीके से हमको सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड प्लेस्ड है वो पता चल जाता है। वेरएज सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो 2 तरीके के हैं, एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, दूसरा बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स में देखो एक इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शनल, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट है एंड दे आर कनेक्टेड विद द बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। इवन सल्फाइड बॉन्ड भी हमको देख सकते हैं, डाइसल्फाइड। यहाँ पे देखो अगर आपको देखोगे ध्यान से तो CNH एंड COOH, NH एंड COH बॉन्ड, ये बॉन्डिंग से ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। क्या बोलेंगे? बीटा प्लेटेड शीट। देन द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखो ये ही हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीके से पूरे में इंटरवाइंड होगा। अलॉन्ग विद दैट ये प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर सीधे सीधे भी हमको देखने मिलेंगे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको एक वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जो हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। सबसे ज़्यादा एक्टिव साइट फॉर बाइंडिंग सम एंजाइम्स और सम अदर सब्सटेंस वो इसी में दिखती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखें तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जैसा एक है वैसे ही 2, 3, 4 स्ट्रक्चर और ऐड हो जाएं तो इट विल फॉर्म द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसको असेंबल्ड सब यूनिट भी बोलते हैं। देखो यहाँ देखो अमीनो एसिड ये बता रहा है बीटा प्लेटेड शीट, अल्फा हेलिक्स, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स किस तरीके से अरेंज्ड है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बता रहा है। सो इस तरीके से प्रोटीन अमीनो एसिड्स में से बनता है। तो अमीनो एसिड्स वी कैन कंसीडर इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल, वेयरएज प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड्स में से ही बनते हैं दे आर कंसीडर्ड एज बायो मैक्रो मॉलिक्यूल and amino acids are known as bio micro molecule. So here in this way we can deduce the protein structure also. In the next lecture we are going to study about the next topic, that is the fats. Here see this final structure, if we'll see primary, secondary, helical structure, tertiary and quaternary. These are the plated sheet, alpha helical structure, beta plated sheet, quaternary structure and hemoglobin, तो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। देखो हीम सब यूनिट यहाँ पे एकदम क्लियरली दिखा रहा है एंड वो 4, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 4 सब यूनिट जब इकट्ठा होंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और इसी का हेलिक्स एंड प्लेटेड शीट जब मिक्स होंगे तो हमको टर्शियरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब मिलेगा? जब प्राइमरी स्ट्रक्चर आइदर हेलिकल फॉर्म में होगा या फिर शीटेड फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से प्रोटीन है वो हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी स्टडिंग अबाउट लिपिड्स, इट्स बेसिक सब यूनिट्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड द स्ट्रक्चर एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स। टिल देन study well. Thank you so much.